Hello everyone, welcome back to our channel. In today's video, we are going to learn how to perform CRUD operation using grid view in C# with ASP.NET. Okay, so CRUD means what? Create, read, update, and delete, which are the basic operations of any database-driven application. So in this tutorial, I will show you step-by-step process. How to connect your application to a database, how to display data using grid view, and how to insert, update, and delete records easily. And this video is perfect for beginners and students preparing for exams. So without wasting any time, let's get started. First of all, open the Visual Studio 2019 and click on create a new project. And then click on ASP.NET Web Application. On top, you are showing that C# icon. Okay. Don't select with VB and click on next. Put the project name whatever you want, like student grid CRUD. Done. And select the location. I'm selecting desktop and select and then create. Okay, and take empty and untick the HTTPS. Okay, because we are creating from scratch. Create, it will take some time. That's it. And now click on the solution explorer, the project name, right click and click on add new item, then select web forms. Yes, and then put the name whatever you want, like student grid CRUD. Done. Okay, now click on the design part. This is source part, and here take one grid view. Okay, in the data section, here is the grid view. Okay, double click on this. Okay, and now click on the small on top, that is less than or greater than sign, and click on add new column. First of all, select properties of grid view. Okay, so here, come here on property section and click first, that is auto generated column, that is true, and make it false first of all here. Okay, now this is false. Okay, now click on show footer, that is false, click on true. सी यहाँ पे फूटर आ चुका है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस फूटर में बेसिकली हमको काम क्या करना है, फूटर में हमको ऐड न्यू रिकॉर्ड्स के सारे फील्ड्स रखने हैं, जिसके अंदर फील्ड्स के अंदर हम इनपुट करेंगे न्यू डेटा, और जैसे ही हम उस ऐड न्यू बटन को क्लिक करेंगे तो वो डेटा है वो इस ग्रिड व्यू में शो होने लग जाएगा. ओके, और यहाँ इस ग्रिड व्यू में सारी सेटिंग्स करने बाकी है, और यहाँ एक वेट 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 data key name, that is id. Okay, now come on this section, add new column. Click on template field. Okay, because template field, when you select template field, then you can edit this template, otherwise you can't. So click on the header text, id, column name is id, and auto generated columns are gone. And same wise, add multiple columns. Click on the template fields and then name, id name, template field, id name, age, gender, same template field, and add new column. Okay, add new column, then gender, then address, AWDRESS. Done. Okay, and then last column is operation column, where we perform operations like update, delete, and then edit, and then cancel. Okay, so first of all, select the command field, and in command field, edit, update, delete. Okay,
and header is operations. Done. Click on OK and make this operation template field also, because we have to add here one button. So edit columns पे आके हमने इस operations को convert this into template field पे click कर देना है. ओके और ये सब तो ऑलरेडी template field में converted है. डन. एंड देन यहाँ पे अब इसके सारे के अंदर हमको बाइंड और इवल करके हमको डिफाइन करना पड़ेगा आइटम टेम्पलेट और एडिट टेम्पलेट के अंदर, और फूटर टेम्पलेट के अंदर भी हमको ऐड करना पड़ेगा. लाइक जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जब ऑपरेशन के नीचे एक बटन रखेंगे तो ये सारे फील्ड के अंदर जो डेटा है वो इस ग्रिड व्यू के अंदर ऐड होते जाएंगे. ओके सो इस टेम्पलेट को एडिट करने के लिए हम क्लिक करेंगे एडिट टेम्पलेट. यहाँ पे जो ये लेस देन और ग्रेटर देन जैसा दिख रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करके आपको टेम्पलेट को एडिट करना है. और ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेप है, सो केयरफुली इसको देखें. तो यहाँ पे जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कॉलम 0 कॉलम 1 करके सारा आपका कॉलम दिखेगा. अगर कॉलम ना दिखे तो समझे कि आप उसको टेम्पलेट फील्ड में कन्वर्ट नहीं किए हैं. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे हमको चारों पांचों दिख जाए एडिट करने वाले. ओके सो वेट मैं यहाँ पे इसको थोड़ा डाउन कर लेती हूँ बस. अब इस आईडी टेम्पलेट के अंदर हमको क्या लेना है, एक लेबल लेना है, लेबल. डन. और इसके अंदर हमको एडिट आइटम टेम्पलेट के अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स नहीं लेना है क्योंकि आईडी हम ऑटो इंक्रीमेंट रखने वाले हैं. तो अपडेट पे क्लिक करके हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट ही रहेगा तो हम अपडेट नहीं कर पाएंगे. सो फूटर के अंदर भी हमको इसको नहीं लेना है क्योंकि ये आईडी कॉलम है और इसे मैं ऑटो जनरेटेड लेने वाली हूँ, कॉलम्स ऑटो जनरेटेड नंबर्स जो मैं लेने वाली हूँ इसलिए. सो क्लिक ऑन दी लेबल के ऊपर भी आपको सेम ग्रेटर देन लेस देन वाली साइन दिखेगी. इसके ऊपर एडिट डेटा बाइंडिंग करके आएगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे और जो ये लेबल है वो हमको सिर्फ शो करवाना है ग्रिड व्यू में, तो इसलिए हमको इवल करके लिखना पड़ेगा, इवल. एंड ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नाम देंगे और सेम जैसा कि हमने कॉलम का नाम लिखा है वैसा ही, आईडी स्मॉल है तो स्मॉल. डन. एंड जस्ट डेटा बाइंडिंग हो चुका है आईडी का पूरे कॉलम को ध्यान देके सभी को एडिटिंग करें. 0 हो गया है, अब 1 पे आते हैं. 1 की सभी को अब सेम लेबल दे देंगे पहले तो आइटम में. हाँ लेबल के अंदर भी सेम बाइंड कर देंगे, सॉरी इवल कर देंगे क्योंकि सिर्फ शो करवाना है ग्रिड व्यू में. सो कॉलम नेम नेम, क्लिक ऑन ओके. और एडिट आइटम टेम्पलेट में क्या होगा, जब हम अपडेट करेंगे ना तो ये फील्ड आ जाएगा जिसके अंदर हम इनपुट करेंगे वैल्यूज जो भी रहेगा नेम का. सो टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे. अब टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है. अब इस टेक्स्ट बॉक्स को एडिट डेटा बाइंडिंग करके यहाँ पे बाइंड करके लिखेंगे क्या, कॉलम नेम नेम. दैट्स इट. ये बाइंड इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमको अपडेशन में काम आएगा. एंड फूटर पे सेम हमको ये लेना पड़ेगा क्योंकि हम फूटर में भी इंसर्ट रिकॉर्ड वाला ही करने वाले हैं. सो फूटर में ऐसा कुछ नहीं आएगा आपको बाइंड करने वाला क्योंकि वो सिर्फ अपडेट में आता है. सो इसको सिलेक्ट करके हम इसका आईडी चेंज कर लेंगे. क्या करेंगे, txt f नेम. डन. और इसका तो txt नेम लिख लेते हैं, txt नेम. ओके ये अपडेशन वाले क्लिक पे हमको काम आएगा. ओके सो दैट्स इट. एंड ये वाला भी हमारा डन हो चुका है, कॉलम का सारा प्रॉपर्टी सेटअप. एंड देन कॉलम 2 पे आ जाएंगे, एज वाले पे. सेम एज वाले पे भी वही करेंगे. यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं एंड यहाँ पे लेबल लेना पड़ेगा एक. लेबल पे क्लिक करेंगे डबल एंड देन सेम प्रोसेस एडिट डेटा बाइंडिंग. एडिट डेटा बाइंडिंग करेंगे, इवल करेंगे, डबल कोट्स रखेंगे और एज रख देंगे. डन. और सेम इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आके हम आईडी रखेंगे, चेंज द आईडी दैट इज txt एज. एंड फूटर के भी आईडी चेंज कर लें, txt एज. व्हाट एफ एज, इट इज फॉर फूटर. तो मेरे को याद आएगा कि इंसर्ट के टाइम पे मेरे को txt एफ एज लेना है और अपडेट के टाइम पे मेरे को सिर्फ txt एज लेना है. ओके एंड सेम वाइज हम जेंडर के भी कर लेंगे. सो जेंडर पे आके हम यहाँ पे लेंगे एक लेबल और लेबल के बाद हम यहाँ पे एक लेंगे व्हाट, रेडियो बटन लिस्ट. अब यहाँ पे आपको रेडियो बटन नहीं लेना है क्योंकि रेडियो बटन आपको एक मतलब एडिशनल कोड करना पड़ेगा रेडियो बटन को बाइंड करने के लिए. एंड रेडियो बटन लिस्ट आपको वेरी सिंपल कोड प्रोवाइड करता है और उसमें ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं. सो माय सजेशन इज यू टेक रेडियो बटन लिस्ट. सो क्लिक ऑन द रेडियो बटन लिस्ट एंड यहाँ पे जो आपको फिर से यहाँ पे जो ग्रेटर देन लेस देन वाला साइन दिखा है इसके ऊपर क्लिक करके एडिट आइटम्स पे क्लिक करें, ऐड. एंड यहाँ पे मेल पे क्लिक करें, MALE.
and another one is female. Done. And click on OK. और यहाँ पे भी सेम रखना है, तो जस्ट कॉपी इट एंड देन पेस्ट इट. डन. एंड इसकी प्रॉपर्टी भी थोड़ी सेट कर लें. RB F जेंडर, फूटर में का जेंडर. ओके. और ये कौन सा है? RB जेंडर. डन. अब इस पे आए और इस पे आके आप क्या करें, एड्रेस वाले को एडिट कर लें. एड्रेस पे भी सेम यहाँ पे एक लेबल ले लें. लेबल आपने ले लिया है तो अब यहाँ पे आके आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना है एंड टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद उसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे भी सेम टेक्स्ट बॉक्स रख देना है, क्योंकि बार बार आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाओगे टेक्स्ट बुक लेने तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा और खास करके एग्जाम्स टाइम में तो ये सब काफ़ी मैटर करता है. यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लें. क्या है? txt एड्रेस, txt. डन. इसकी भी txt f एड्रेस. डन. और यहाँ पे हमने इसके अंदर अभी बाइंडिंग वाला करना बाकी है. आई थिंक जेंडर में भी करना बाकी है. सो बाइंड. अब आपको पता चल गया होगा कि बाइंड का क्या होता है और इवल का क्या होता है. एड्रेस नथिंग, इवल में बस शो करवाने के लिए और बाइंड में हमको अपडेशन में अपडेट करने के लिए देता है. ओके. इवल एड्रेस. डन. एंड देन लास्ट चेक, दैट इज ये जेंडर वाले पे आई थिंक हमारा बाकी रह गया था. लेबल पे भी वो चेक कर लेते हैं. यस, इवल एंड देन व्हाट, जेंडर. इसके अंदर भी हमारा बाकी रह गया था. एडिट डेटा बाइंडिंग, व्हाट, बाइंड एंड देन जेंडर. एंड क्लिक ऑन ऑपरेशन. ऑपरेशन के फूटर में हमको एक बटन रखना है. सॉरी, एडिट टेम्पलेट. Click on this and the last fifth column is operations and operation the last one is what, footer में हमको एक बटन रखना है. बटन का नाम रख लेना है एड न्यू रिकॉर्ड्स. डन. एंड what, btn insert. एंड ये प्रॉपर्टी सेट हो गया है. अब हमको एक इवेंट लगानी पड़ेगी इस बटन पे जिसको क्लिक करते ही क्या होना चाहिए, इंसर्ट हो जाना चाहिए. ओके. सो उसमें हम डेटाबेस का कोड रखेंगे. तो यहाँ पे जो ये आपको बिजली वाली साइन दिख रही है, इस बिजली पे क्लिक करना है. ये इवेंट्स है. इस इवेंट पे आपको क्लिक करने वाले इवेंट्स पे आपको एक इवेंट का कोई भी नाम लिख दो, जैसे कि btn insert. डन. अब ये btn insert क्लिक जैसे आप एंटर करोगे तो आप डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे .aspx.cs वाले पेज पे. सो एंटर किया मैंने और यहाँ पे आपने रीडायरेक्ट हो गए. और यहाँ पे अब हमारा काम होगा क्या, डेटाबेस का. लेकिन उससे पहले हमको ग्रिड व्यू की कुछ प्रॉपर्टी सेट करना है. डन. यहाँ तक तो हमने सब कर लिया है. ग्रिड व्यू का सब कुछ सेटअप हो चुका है. अब जैसे ही आप एंड टेम्पलेट एडिटिंग करेंगे तो आपको ये सारे एंड करने के बाद सब कुछ अनबाउंड जैसा दिखेगा, डेटा बाउंड. ओके. एंड जस्ट क्लिक ऑन द ग्रिड व्यू एंड इधर पे आके आपको 2-3 सेटअप करना था. आई थिंक मैंने किया है स्टार्टिंग में कि नहीं. हाँ, किया है, कर दिया है, हो चुका है, सब कुछ डन है. अब यहाँ पे कुछ इवेंट्स लगाना है इस ग्रिड व्यू पे. इवेंट्स लाइक जब आप अपडेट करोगे इस ग्रिड व्यू को तो रो अपडेटिंग, तो उस पर क्या आएगा, ग्रिड अपडेट. डन. ग्रिड अपडेट पे क्लिक करते ही जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने इस अपडेट सेक्शन के अंदर रखा है वो सब कुछ ट्रिगर करेगा. एंड देन रो एडिटिंग. ओके. सो ग्रिड एडिट. डन. एंड देन रो डिलीटिंग, ग्रिड del. Done. And one is cancelling, row cancelling edit. Okay. So grid cancel edit. Then हमको इन चारों के अंदर कोड लिखना है. इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, कैंसिल, डिलीट, एडिट, समथिंग. ओके. तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, डेटाबेस क्रिएट करना होगा. यहाँ पे आए डेटा कनेक्शन के अंदर, डेटा कनेक्शन के अंदर ऐड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे. एंड ऐड कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, करते ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर आ गया है और यही हमको चाहिए. और जब अगर आप एक्सेस कर रहे हो तो आप एक्सेस पे क्रिएट कर लो. ओके. ओके. एंड एक डेटाबेस फाइल नेम ले लेते हैं लाइक ग्रिड क्रड. डन.
CRUD, डन, DB डेटाबेस, डन, ओके। अब ये बोल रहा है कि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है, आप क्रिएट करना चाहते हो? यस, करना चाहते हैं, ओके। अब इसके अंदर आके पहले से एक कॉपी कर लेते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग और डिफाइन करते हैं डेटाबेस के लिए कुछ नेम स्पेस, लाइक यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ओके, डन। अब यहाँ पे इस क्लास के अंदर आके आपको कनेक्शन स्ट्रिंग वाली लिखनी पड़ेगी, ओके। सो एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन con is equals to new SQL connection, and then whatever the connection you are copied, paste here, okay, in double quotes, and at last put semicolon, done, okay. And here the next part is we have to create one custom method. Custom method means खुद ही बनाना पड़ेगा, कहीं से आएगा नहीं। ये सारे जो मेथड है हमने इवेंट्स मतलब हमने लगाए हैं तो जाके ये आया है। और यहाँ पे एक मेथड हमको बाइंडिंग के लिए बनाना पड़ेगा, ग्रिड व्यू बाइंडिंग। उससे क्या होगा कि जो भी डेटा है जो है डेटाबेस में, वो डेटाबेस से उस ग्रिड व्यू पे जाके दिखेगा, ओके। सो उसके लिए लिखना पड़ेगा void ग्रिड व्यू, और यहाँ पे आके इस मेथड के अंदर हमको वो पार्ट्स लिखना पड़ेगा वो ग्रिड व्यू के ऊपर रखने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे डेटा टेबल। अब डेटा टेबल क्यों लेंगे वो भी बताती हूँ। डेटा टेबल, हाँ ये रहा डेटा टेबल, डबल क्लिक करें, डेटा टेबल DT। डेटा टेबल क्या करता है, एक टेम्पररी टेबल क्रिएट करता है मेमोरी में, जिसके अंदर जो भी क्वेरीज जो है, जो अभी हम लिखेंगे वो क्वेरी, उस क्वेरी से लाके उस टेबल के अंदर रखेगा, ओके। सो DT इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल, ओके, न्यू डेटा टेबल, एंड देन okay, now SQL data adapter, where is it, here is it, double click on this, a data adapter, okay, is equals to new data adapter, SQL data adapter। अब इसके अंदर हम वो क्वेरी लिखने वाले हैं। और ये डेटा एडेप्टर क्या करता है, डेटा एडेप्टर कुछ नहीं, बस फास्ट एक्सेस के लिए बना हुआ है। लाइक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, लाइक इंसर्ट अपडेट ये सब नहीं कर सकता, जस्ट रीड ओनली एक्सेस करेगा, ओके। लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये क्या करता है, जस्ट क्वेरी लेके देता है। बेसिकली डेटाबेस में कुछ मतलब काम धाम नहीं करता है, ये जस्ट डेटाबेस से डेटा रीड ही करता है। सो वही क्वेरी रखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल हमने बनाई कि नहीं बनाई, लेट्स चेक। ये तो बनाई टेबल ना, टेबल नहीं बनाई है, ऐड न्यू टेबल। अब यहाँ पे आके क्या करेंगे, टेबल का नाम सबसे पहले चेंज करेंगे। यहाँ पे जो टेबल लिखा है उसे हटा के जो भी नाम रखना है, लाइक मैं रख रही हूँ स्टूडेंट, एंड दैट्स इट, एंड आईडी, आईडी एंड आईडी को बना लेते हैं क्या, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में फॉल्स दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको ट्रू, इज आइडेंटिटी, यस ट्रू। ये क्या करेगा, ऑटो इंक्रीमेंट करेगा आईडी को 1 1, ओके। एंड देन आईडी के बाद यहाँ पे क्या ले लेंगे, नेम, एंड देन उसकी डेटा टाइप क्या ले लेंगे नेम में, वेर कैर, डन। अलाउ नल, नो नो अलाउ, तो अनचेक दिस, आईडी नेम एंड देन एज एंड देन जेंडर एंड देन एड्रेस, डन। एंड यहाँ पे सबकी डेटा टाइप चेंज कर दें अगर करना हो तो, ओके। integer, done, and uncheck this all because I don't, मेरे को अलाउ नहीं करना है नल वैल्यू, सिंपल, ओके। सो हमारी टेबल बनके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको अपडेट कर लेते हैं, सिंपल, सब सही है, यस सही है, चलो अपडेट पे क्लिक किया, कुछ देर बाद प्रिपेयर कर रहा है अपडेट का स्क्रिप्ट, ओके प्रिपेयर हो चुका है, अपडेट डेटाबेस, डन, बन गया टेबल। अब यहाँ पे हम वो क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम व्हाट, स्टूडेंट, जो अभी हमने नाम दिया टेबल को, ओके, और यहाँ पे सेमीकोलन, डन। अब क्या है, अब ये क्वेरी तो आ गया, डेटा टेबल भी बन गई, लेकिन दोनों अलग अलग है। अब दोनों को मिलाते हैं, da.fill dt, डन।
अब यहाँ पे कनेक्शन ऑन करते हैं, ओपन, कनेक्शन ओपन, कनेक्शन ओपन, देन कनेक्शन क्लोज। और कनेक्शन ओपन और क्लोज के बीच में ही आपको ये काम करना है कि नहीं? कनेक्शन क्लोज रहेगा तो काम कैसे चलेगा? और ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये तो लिख दी है, बट इसके बाद में कनेक्शन भी तो रहना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे कनेक्शन, इसीलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा था। ओके, और कनेक्शन क्लोज, डन। और इस दोनों के बीच में हम ये वाली लाइन रखेंगे, डन। और सॉरी, डी ए, डन। और यहाँ पे एक काम और करेंगे, क्या करेंगे? इफ जो रो है, कौन सी रो? डेटा टेबल में जो रो है, रोज डॉट काउंट, मतलब जो भी जैसे कि हम सिलेक्ट करवाएं तो सिलेक्ट में बहुत सारी रो आ जाएगी ना, अगर नहीं रहेगी तो कोई रो आएगी नहीं। सो डी टी डॉट रोज डॉट काउंट इज ग्रेटर देन 0 हो, सो 0 हो तो ही क्या करें भाई, मेरे को ग्रिड व्यू पे शो करवाए। अब मेरे को ग्रिड व्यू रखना पड़ेगा, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स, जो भी हमने लिया है, एस ओ यू आर सी डेटा सोर्स, और डेटा सोर्स क्या इज इक्वल्स टू डी टी। हो गया। अब ग्रिड व्यू को बाइंड कर दो, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड, डन। यहाँ पे जो है ग्रिड व्यू डेटा बाइंडिंग की काम अब हो चुकी है। अब जो है डेटा जो है हम इंसर्ट करेंगे तो वो ग्रिड व्यू पे शो होएगा, डन। अब एक पेज लोड पे भी एक काम करना है, क्या? एक कंडीशन रखेंगे, इफ इज नॉट पोस्ट बैक, तो क्या करें? तो ये वाला मेथड कॉल कर दे भाई, सिंपल। बार बार इस मेथड को कॉल नहीं करना है ना? वो बार बार मेथड को कॉल करने से प्रॉब्लम हो सकता है, लाइक ग्रिड व्यू जो है वो एडिटिंग मोड पे चली जाएगी, तो बार बार एडिटिंग मोड पे चली जाएगी तो हमारा डेटा लॉस हो सकता है, दैट्स इट। अब बटन इंसर्ट के अंदर हम कोड रखेंगे, बटन इंसर्ट के अंदर कोड रखने से पहले हमको जो भी हम इस ग्रिड व्यू के अंदर कंट्रोल्स लिए हुए हैं, लाइक दिस, ये चारों, उन चारों को हमको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। सो टेक्स्ट बॉक्स से पहला नेम वाला था, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या था? टेक्स्ट बॉक्स में नेम, नेम वेरिएबल नेम है ये, नेम इज इक्वल्स टू, जो टेक्स्ट बॉक्स में नेम है, टेक्स्ट बॉक्स ग्रिड व्यू 1 डॉट फुटर कंट्रोल, फुटर रो, सॉरी फुटर रो, एंड देन फुटर रो में जाके फाइंड कंट्रोल, कौन सी कंट्रोल फाइंड करनी है? अभी मैं जो पास करूंगी पैरामीटर के अंदर वो कंट्रोल, कौन सी कंट्रोल है? एफ नेम, वो भी txt एफ नेम। ओके, इसीलिए मैंने फुटर में एफ नेम दे के रखा था, जिससे यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। इंसर्ट के टाइम पे मैं सारा वाला फुटर रो वाला काम करूंगी, तो इसीलिए एफ 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 देते जाऊंगी। ओके, सो जस्ट कॉपी इट और यहाँ पे पेस्ट कर दे जितने भी आपको काम है। ओके, लाइक नेम के बाद क्या हो जाएगा? एज, एज के बाद क्या हो जाएगा? जेंडर, जेंडर के बाद क्या हो जाएगा? एड्रेस। लेकिन क्या जेंडर में टेक्स्ट बॉक्स रहेगा? नहीं, रेडियो बटन लिस्ट आ जाएगा, है कि नहीं? सेम यहाँ पे भी रेडियो बटन लिस्ट, txtf what gender, then same for these four, age and done। ओके, अब यहाँ पे सेम जो इंसर्ट में हम हमेशा करते हैं, बेसिक इंसर्ट ऑपरेशंस, वो करेंगे कनेक्शन ओपन और कनेक्शन क्लोज करके। सो डॉट ओपन, query string, string qry is equals to insert into student name, age, gender, address, values, at the rate name n only, at the rate age, comma, at the rate what gender g, and at the rate address a double d, डन। अब ये क्वेरी पे जैसे ही ग्रीन साइन आएगा, इसका मतलब है आपने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। सो अब इसको यूज करने के लिए हम एसक्यूएल कमांड लेंगे, एसक्यूएल कमांड cmd, जैसे कि हमने यहाँ पे, वेट बताती हूँ, जैसे कि हमने डेटा एडिटर और डेटा टेबल लिया था अलग अलग और उसको मतलब कंबाइन नहीं किया था, तो वैसे ही हमको यहाँ पे भी कंबाइन करना है क्वेरी को कमांड के साथ। ओके, सो कमांड cmd इज इक्वल्स टू न्यू
SQL command and then query and then connection. इस query को connection के साथ connect कर दिया. Done. अब करेंगे cmd dot parameters dot add with value. अब इसके अंदर हमने पास क्या किया था @n और ऊपर हमने वेरिएबल में क्या स्टोर किया नेम वाले में नेम स्टोर करवाया है. सो कॉमा नेम. डन. यही चीज हमको चारों के लिए करना है. एज, जेंडर, एड्रेस, चारों वेरिएबल्स के नाम लिख देंगे. सो एड्रेस, जेंडर एंड देन एज. डन. हो चुका है सब. एंड देन cmd डॉट execute non query and then connection close. कनेक्शन क्लोज. अब ग्रिड व्यू को मेथड को कॉल कर देंगे. ग्रिड व्यू का डेटा शो करवाएंगे. ओके. डन. सो इंसर्ट वाला काम हमारा हो चुका है मोस्ट ऑफ दी. नाउ लेट्स चेक करके एक बार देख लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं. ऑब्वियसली नहीं होगा बिकॉज हमने क्वेरी रखा हुआ है कि रो ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्रेटर देन 0 तो होगा नहीं क्योंकि फर्स्ट टाइम रन कर रहे हैं. उसके लिए भी बहुत सारा मतलब थोड़ा कोड लिखना पड़ता है जिसे 0 पे भी रन हो जाएगा डमी डेटा लेके. ओके. सो सबसे पहले हमको एक टेबल में एक वैल्यू रखना पड़ेगा तो रख देते हैं. रिफ्रेश करते हैं. यस. अब इस टेबल के अंदर हमने ओपन टेबल शो टेबल डेटा एंड इसके अंदर एक वैल्यू रखते हैं. लाइक आईडी तो रख नहीं सकते इसीलिए इनेबल नहीं है. अब नेम में रख देते हैं निशी. एज में रख देते हैं 24 एंड जेंडर में रख देते हैं फीमेल एंड एड्रेस में रख देते हैं सचिन. डन. हिट द एंटर. अब इसको रन कर देते हैं. ऑब्वियसली ग्रिड व्यू शो होना चाहिए. लेट्स चेक. ओके. आ चुका है. लेट्स इंसर्ट टेक नेम रूपा and then 23 and then female then Sachin. Add new record. Okay. Here is one error. What is that error? No mapping exists from object type. Okay. Text box to a known managed provider native type. Okay. This one is one error and here we have to take जो भी हमने नेम पे जो टेक्स्ट लिखने वाले हैं वो. ओके. डॉट. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप द एग्जीक्यूशन. ओके. now age dot check text, age dot text, now gender dot. Okay, because radio button we take dot text. Done. So उसको यहाँ पे कॉमा दे. सॉरी. now let's check one more time. Use the same data. Check female. Add new record. Yes. Now our insert button is working. Now we do code for edit, update and delete and these all are very simple. So let's do. So just copy this, paste it on update. Okay. And change the things that I am going to change. Okay. So सबसे पहले हमको क्या करना होगा इसमें सबसे पहले तो हमको जो हम सिलेक्ट करेंगे आईडी उसको हमको एक आईडी वाले वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही हम एडिट क्लिक करेंगे तो वो एडिट वाली कॉलम ये एडिट वाली कॉलम सॉरी रो सिलेक्ट हो जाएगी. ओके. सो सबसे पहले हमको उसको स्टोर करवाना पड़ेगा और ये जो बाकी सब स्टोर है उसको तो स्टोर करवाना ही है. ओके. लेकिन हमको यहाँ पे एक चेंज करना है. यहाँ पे फूटर रो के जगह हमको क्या रखना है ओनली
row. Okay, grid view 1 dot rows e dot row index. Okay, e dot row index, raw index. Okay, and then find control, and then find control, and then txt only name, not in footer. Okay, done. And same wise, just copy one line this and paste it and remove footer rows. Okay, and then same as for footer, sorry, address. Okay, एंड यहाँ पे हम आईडी को स्टोर करवाएंगे. ओके, सो INT ID इज इक्वल्स टू ग्रिड व्यू 1. अब जो भी ग्रिड व्यू के अंदर डेटा कीज जो हमने सेट करके रखी है, डॉट डेटा कीज, डेटा कीज किसकी, जो भी आईडी की ही की है वैसे, ई डॉट रोज इंडेक्स डॉट वैल्यू. अब जो भी हमने रो सिलेक्ट करी है उस रो के इंडेक्स की वैल्यू किसकी, आईडी की. ओके, अब इसके अंदर हमको डेटा कीज के अंदर हमको आईडी रखना पड़ेगा. ओके, सो वैल्यू करके अब ये जो वैल्यू है उसको हमको कन्वर्ट कराना है. ओके, किस में, इंटीजर में. सो कन्वर्ट dot to int 32. Okay, done. And this one is also done. Just remove this, paste it from here. Okay, and for footer rows, click on, means paste this rows dot row index. Okay, now update student, set what name is equals to @name, comma, age is equals to @age, gender is equals to @gender, address is equals to @address. Done. Where id is equals to @id. Okay, name, age, gender, and address. Okay, and these are the same, and everything same. एंड ग्रिड व्यू के आगे हमको एक लगाना है, ग्रिड व्यू 1 डॉट, ग्रिड व्यू 1 डॉट edit index is equals to -1. Edit and cancel have only two line code, that is grid view edit index. Just copy this and paste it on cancelling the things. Okay, और यहाँ पे ग्रिड व्यू एडिट में क्या करेंगे, एडिट वाली कोड लिख देंगे. जस्ट एडिट पे क्या करना चाहिए, जस्ट उसको अपडेट वाले पे कॉपी करके उसका इंडेक्स अपडेट वाला लिंक चालू हो जाएगा. ओके, सो जस्ट ग्रिड व्यू 1 डॉट edit index is equals to e dot new edit index. Okay, and here that is grid view bind वाला. ओके, मेथड पेस्ट कर देंगे. एडिट वाला क्या करेगा, सेट करेगा कि कौन सी रो एडिटेबल है और उसको एडिट मोड पे चालू कर देगा. ओके, दैट्स इट, इसके लिए ही ये कोड है. एंड कैंसलिंग वाले पे क्या होगा, जैसे ही हम एडिट इंडेक्स -1 रखेंगे तो वो एडिट मोड से एग्जिट हो जाएगा और ग्रिड व्यू डिस्प्ले करवा देगा. दैट्स इट. और यहाँ पे भी वही हो रहा है, अपडेट सेक्शन में अपडेट में पूरा अपडेट हो रहा है और ये एडिट इंडेक्स -1 कर देगा, एडिट मोड को ऑफ, मतलब एग्जिट कर देगा. ओके, एंड दैट्स इट. अब यहाँ पे एक डिलीट वाली क्वेरी रख देती है. डिलीट से पहले एक बार चेक कर लेते हैं अपडेट वाली क्वेरी वर्क कर रही है कि नहीं. सो क्लिक ऑन दिस,
Yes, and click on the second edit link and Sachin Surat. Done and update. No, it's have error. That selected value. Okay. Okay, sorry. Here I write the RB underscore F gender is that is for footer, and we have to write the name of the edit item template. Okay, edit item template वाला जो भी था हमने नेम रखा वही नेम रखना पड़ेगा इधर पे. So that's the error. So just stop the execution and run. Now edit Sachin then Surat. Okay, click on update. Oh my god, where is the variable ID? Must declare the scalar. Okay, wait. Stop the execution. पैरामीटर्स में यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे हमने पैरामीटर्स में आईडी रखी नहीं है. सो cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट एड विथ वैल्यू @ आईडी आईडी जो कॉलम ने हमने यहाँ पे स्पेसिफाई जो वेरिएबल यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया है. ओके, सो डन एंड नाउ रन. एडिट सचिन सूरत अपडेट. Conversion failed when converting the varchar value to an integer. Okay, wait. Where I converting name into integer? I'm just converting id into. Whatever the integer value the update section holds, convert it into integer. Okay, copy from here, paste it. Okay, and write the code for delete and then paste it here. Copy these line from insert, paste it here. Query delete from student where id equals to @id. Done. And remove these things. Paste just one line. Copy from update, paste it into delete. And that's it. Now just run this. Edit and then Surat, then update. What's the error? Input string was not in correct format. बस इसको हटा दे क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी इंटीजर में ही लिया हुआ है यहाँ पे डेटा टाइप डेटाबेस में. Edit Surat, update it. So here is one error occur. Conversion failed when converting varchar value rupa to data type integer. Okay, so let's check this error. Let's first of all stop the execution and see where we uses integer. Here is name test box. Here everything is correct. Let's check the grid view. The age column. Let's check this. इधर पे बाइंड एज की जगह मैंने कॉपी पेस्ट में नेम आ गया है इसलिए वो एरर आ रहा था. ओके,
सो अब सॉल्व हो चुका है, एक बार फिर से रन करके देखते हैं। ओके, सो रन, नाउ एडिट, update, edit, and this, and then update. Yes, and let's delete, check the delete, deleting. Yes, everything is working fine. So let me add one more time, and so that's it, everything is working fine. Stop the execution. See the update section. Okay, ओके, ये -1 क्या करेगा, एडिट इंडेक्स -1, ये एडिट इंडेक्स -1 क्या करेगा, एडिट मोड से एग्जिट हो जाएगा। ओके, एवरीथिंग इज डन। So that's it for today. Now you know how to implement CRUD operation using grid view in C Sharp. If you find this video helpful, like the video, comment if you have any doubt, and don't forget to subscribe. Okay, thanks for watching.